happens when you take a corporate warrior from the Big Four, add a law degree, throw in some Mumbai hustle, and a journey marked by real struggles. You get a teacher who makes the toughest tax provisions feel like old friends. Champs, tonight's not just any other lecture, it's a turning point. But before I introduce you to tonight's iconic guest, let me welcome you all properly. Whether it's your first time here or you've been with us since day one, we are so glad to have you. I am Kusha, and you are officially on episode 13 of the WOW series Words of Wisdom by the Winner Circle, a community of CA students, by CA students, and for CA students. If you're still wondering what the Winner Circle is, you're a bit late, but let me tell you, it's a family, a vibrant all India community of CA students where we push each other to grow from peers to professionals. The Winner Circle first initiative is education, an anthology written entirely by CA students sharing their stories from across the country. This project's going to be launched soon, so make sure you stay connected with us across all platforms because you are part of our community now. Now, moving on to our esteemed guest. Imagine this, a chartered accountant with 6 years of experience from EY, a 15 lakh rupees corporate salary, a law degree, who put it all aside so he could teach you what your textbooks couldn't. His YouTube channel has 1,18,000 subscribers, featuring 700 plus videos with over, wait for it, a million watches. Beyond this, he has mentored over 75,000 students preparing for their CA, CMA, and CS exams. His Rapider and Pocketbook series even combine QR coded videos with physical notes, the perfect last day revision. From a humble batch of just 5 students to now hosting live marathons with thousands of live learners, he is living proof that dedication and passion can smash every barrier. So, keep your cameras on, your hearts open, and the chat box ready as I welcome the one and only, the teacher, the mentor, the big brother we all wish we had on tax day, CA Amit Mahajan. A CA with his fair share of struggles who knows exactly how to guide you through them. Now, over to the TWC members, Dhairya and Sarthak, to move forward with the questions. Thank you, Kusha, for such a great introduction. So, before we begin with the proper interview, let's have an ice-breaking session, sir. So, how would you define CA as a profession and how CA as a profession has added value to your life? Okay, first of all, thank you very much for inviting me here and thank you very much for such a wonderful introduction. बहुत अच्छा लगा यार इंट्रोडक्शन सुन के ऐसे लगा बहुत कुछ किया है जिंदगी में एकदम अचानक 10 सेकंड में से लगा कि हाँ यार हम लोगों ने कुछ किया है बट यस सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन धैर्य कि सीए का इम्पोर्टेंस क्या है मेरे लाइफ में लाइक सीए बनने के बाद लाइफ चेंज हुआ दैट इज ऑल फाइन बट सीए करते करते एज अ पर्सन जो मेरे में जो चेंजेस हुए हैं ना दैट इज दोज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी लाइक इफ यू आर डूइंग अ सीए बनने के पहले you become very hardworking. If you are not hardworking, you become very hardworking. If you are not very serious in life, you automatically become serious in life. जो तुम लोगों को मैं भी नहीं समझेगा, but तुम्हारे पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा. Like मेरे साथ ऐसा हुआ था. Like I was never a very serious guy. मतलब मैं ऐसे seriously बहुत पढ़ाई नहीं करूंगा ऐसा. But अचानक से मैं 15 घंटा पढ़ना चालू किया. तो they were like यार ये कैसे हुआ exactly. तो they understood कि नहीं CA has changed him. Like लाइफ को हम लोग सीरियसली लेना चालू कर देते हैं. That is because of CA. This helped. Then कुछ भी सिचुएशन हुआ ना हम लोग उधर से बाहर आ जाएंगे. ये एबिलिटी देता है ये सीए कोर्स, राइट? ये सेकंड चीज. थर्ड चीज तुम लोगों को लाइक सीए करते करते यू मस्ट बी नोइंग कि जीएमसीएस होता है, बराबर आईटी कोर्स होता है. मेरे टाइम पे आईटी था पर इतना मुझे याद नहीं कि मैंने उसमें बहुत मजे किए, राइट? मजे मतलब जो कनेक्शंस होता है ना, नेटवर्किंग होता है, उतना मैंने नहीं किया जितना मैंने जीएमसीएस में किया. तो जीएमसीएस के अंदर मैंने इतने नेटवर्क्स मतलब इतने फ्रेंड्स बनाए जो अभी भी वी आर कनेक्टेड. और अभी भी क्या होता है ना कि अगर कोई मेरे पास आया और मुझे किसी बात के बारे में नहीं मालूम, इंफॉर्मेशन नहीं है, आई हैव दोज पीपल कि मैं उनसे क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट करवा सकता हूँ. सो इससे मेरा नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ गया. तो ये पूरा करिकुलम ने बहुत कुछ सिखाया मुझे इन टर्म्स ऑफ लाइक ये 2-3 चीजें मैंने बताई. और चौथी चीज, हाउ टू डील विथ फेलियर.
ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे बताई सीए कोर्स ने। इट इज नॉट लाइक अबाउट कि तुम लोगों को कितना आता है, एक तुम लोग कितना पढ़ाई करके गए हो। इट इज ऑल अबाउट मेनी थिंग्स। इट्स ए सीए डिग्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, राइट? बिकॉज तुम लोगों को like you should be very serious while attending the lecture, starting from that phase। attending the lectures में रेगुलरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग ने घर जाके, कितना भी तुम लोग थक गए होंगे तो भी घर जाके तुम लोग ने खुद नोट्स या कुछ खुद से कुछ करना चाहिए। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज कि तुम लोगों को अभी जब भी 5-6 महीने के बाद जब भी वही चीज हम लोग देखेंगे, वी रियलाइज दैट सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं। देन यू डील विद दैट ऑल्सो। यू डू सम जुगाड़, और जुगाड़ करने के बाद यू कम टू वन पॉइंट कि हाँ ऐसा अभी हम लोगों को करना है और सब कुछ याद करना है। तो याद नहीं रह रहा तो क्या करना है भाई? इतना बड़ा सिलेबस है अपने पास, इतना बड़ा सिलेबस है, तो वो हम लोग वो सिलेबस छोटा कैसे करें? नॉट लीविंग एनीथिंग ऑन ऑप्शन, बिकॉज जो ऑप्शन में छोड़ते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। बराबर, तो मेरे साथ तो वही हुआ है, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी ऐसे होता होगा। तो वो भी कैसे याद रखना है? तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो इतनी सारी चीजें सिखाती है हम लोगों को कि। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि आर्टिकलशिप में एट अ वेरी यंग एज, आर्टिकलशिप में वी गेट द एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट्स। लाइक वी अंडरस्टैंड कि विच वर्ड्स टू यूज, विच वर्ड्स नॉट टू यूज, हाउ टू डील विथ सीईओज, और हाउ टू डील विथ और हाउ टू टॉक टू बिग पर्सन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने पार्टनर्स का बात किया, तो पार्टनर्स के साथ कैसे बात करना है, ऑफिसर्स के साथ कैसे बात करना है, ये सब कुछ सीए बहुत अच्छे से सिखाता है। और फेल होने के बाद इट इज ओके। एक फेलियर, वन फेलियर इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू, राइट? तो वो भी ओवरकम कैसे करना है, ये भी अपना कोर्स सिखाता है। सो ये बहुत सारी चीजें सीए ने मुझे सीए बनने के पहले ही सिखा दी थी। इसकी वजह से सीए बनने के बाद ऐसा लगा कि यार सही सब कुछ चल रहा है। बिकॉज सीए बनने के बाद भी लोग बोलते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगा, कि अभी जो 10th स्टैंडर्ड से हम लोग सुन रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड देते तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, बाद में 12th आया, बाद में सीए आया। सीए होने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट स्ट्रगल, मतलब तभी प्रॉब्लम्स विल बी डिफरेंट। बट वो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हम लोग का ट्रेनिंग हो चुका है जब हम सीए कर रहे थे। सो इट इज ऑल फाइन। सो सीए ने बहुत कुछ सिखाया, एंड एज एन इंडिविजुअल ड्रास्टिक चेंज, मतलब वो जमीन आसमान का फर्क है मेरे बिफोर आई वाज डूइंग सीए एंड व्हेन आई स्टार्टेड एंड नाउ, राइट नाउ, बहुत फर्क है। सो ये सब चीजें सीए ने मुझे काफी सिखाई। Sir, you worked at a Big Four in corporate tax before moving full time into teaching. What was the turning point that made you shift careers? एक हाई पेइंग जॉब से सीधा जीरो से चालू करना. How did that work out for you? यार सार्थक, ये जो चीज है ना, बहुत दुख होता है यार। मतलब जब भी अभी जैसे लिखा था, आई कुड सी दैट ऑन द स्क्रीन कि 15 लाख सैलरी, तो आई डोंट नो हाउ यू came to know about that, but yes, I was having 15 lakh salary when I left that job। but तभी यार कैसे होता है ना, तो एक देख, when you are from a middle class background, खुद का पैसा कमाना इज ए ड्रीम। और कैसे कि खुद का पैसा कमा के पहले मेरे पेरेंट्स को मुझे कुछ लेके देना है, उसके बाद मैं वो लेके देने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको, मुझे भी लेना है, तो मैं वो उनको देने के बाद मैं खुद भी खरीदूंगा। लाइक आई हैड नेवर सीन मनी, तो मुझे बाइक भी खरीदनी है, मुझे ये भी खरीदना है। वो एक ना लाइफस्टाइल सेट हो जाता है आफ्टर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन यू जॉइन एनी फर्म और कंपनी। और मैं तो ईवाई में था, तो यार आई वाज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी यार, और ये कभी देखा नहीं था पैसा। और तभी सब कुछ करने का मन करता है। तुम लोग भी अभी फेस करते रहोगे, जब भी तुम लोग आर्टिकलशिप चालू किया, ये चीज जब भी वो चीज चालू किया, तो तभी कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। आई डोंट वांट टू थिंक बिफोर बाइंग एनीथिंग। तो एक लाइफस्टाइल सेट हो चुका था, किधर भी अगर जाना होगा, लाइक 200-300 रुपए अगर टैक्सी का भाड़ा होगा, तो मैं जाऊंगा यार, ऐसे कुछ इशू नहीं है, राइट? तो हम लोगों का लाइफस्टाइल एक लेवल ऊपर चली जाती है विदाउट टेलिंग द एंटायर वर्ल्ड कि हम लोग के पास पैसा है अभी, राइट? और इतना भी पैसा नहीं होता है, बट तो भी हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और ये सिचुएशन में ना, जब भी हम लोगों को वापस जीरो पे आना है, लाइक तभी सब कुछ हिट करना चालू करता है यार। और तुम लोगों की आदतें बदल जाती है। अभी मेरी आदत कैसे हुई थी कि मैं बीच में एकदम फिटनेस फ्रीक हो गया था। लाइक ड्यूरिंग दैट फेज 18-19 में मैंने बोला कि बहुत वजन बढ़ रहा है, अभी क्या करना चाहिए, फिटनेस फ्रीक। तो क्या करने, खाने लगा, कॉर्नफ्लेक्स खाने लगा, या फिर मैं ओट्स खाने लगा, ऐसे सब खाने लगा। तो मुझे ना आदत सी हो गई थी कि सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स खाना है। जब भी इनकम जीरो हो गया ना, तब भी प्रॉपर पोहा पे आ गया मैं घर पे। मम्मी को बोलता था कि पोहा बनाओ मस्त बढ़िया वाला। तो ये बाद में जब भी जाना होगा, किधर बाहर जाना होगा, तभी वी नो दैट नेक्स्ट मंथ माई सैलरी इज नॉट गोइंग टू कम। जो मुझे 1 लाख रुपए जो भी आता था इन हैंड, 91 लाख रुपीज जो भी आता था,
वो नहीं आने वाला है, तभी ना ऑटोमेटिकली सब ना हम लोग कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे ये जो ट्रांजिशनल फेज था ना, वो लाइक छोड़ा और उसके बाद 2-3 महीना वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। बाद में मैंने सब सब्सक्रिप्शंस बंद कर दिए थे, लाइक नेटफ्लिक्स बंद कर दिया था। छोटे छोटे एक्सपेंसेस थे ना, मैंने जॉट डाउन करने चालू किए किधर किधर मेरा अननेसेसरी पैसा खर्चा हो रहा है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 499 या 290 ऐसे कुछ तो था, वो निकाल दिया, कुछ जरूरत नहीं देखने का। दूसरा चीज देख, वो Amazon प्राइम भी लेके रखा था, वो Z5 टाइम पास लेके, तो वो सब कुछ मैंने निकाल दिया। वो निकालने के बाद मैंने सोचा कि अभी टैक्सी से ट्रैवल नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे हम लोग, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। तो ट्रेन से ट्रैवल करना चालू किया। देन तभी थोड़ा हिट होना चालू हुआ कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, कितना अच्छा लाइफ चल रहा था और अभी एकदम से जीरो हो गया। तो ये ट्रांजिशन के टाइम पे मुझे लगा कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉरेन ट्रिप्स या कोई भी ट्रिप्स, फॉरेन छोड़ो, कोई भी ट्रिप्स लेने ऐसे लगता था कि मैं पहले कितना घूमता था, अभी तो मैं किधर घूम भी नहीं सकता हूँ। मैं शॉपिंग करने जाता था, आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार मैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मालूम यार नेक्स्ट मंथ पैसा नहीं आएगा, तो इसके वजह से बाद में भी पैसा आएगा कि नहीं। तो ये सब चीजें ना बहुत चेंज होती है। और ये चीज 1-2 महीने की बात नहीं है, ये जब तक तुम लोग सेटल नहीं होते नए करियर में, तब तक दिस विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, राइट। सो वो मुझे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ था। और तेरा ये क्वेश्चन था, पहले का क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे तूने सर तक। तो ये तू मुझे समझा कि क्या चेंज हुआ, और उसके पहले भी तूने कुछ पूछा था। जस्ट आस्क यू कि बिग फोर कॉर्पोरेट से आप सीधा करियर शिफ्ट करके जीरो से चालू किए, तो वो कैसे? तो उसका जवाब आपने दिया मेरा। आई थिंक उसके पहले क्यों छोड़ा, लाइक व्हाई डिड यू लीव कॉर्पोरेट, आई गेस यू करेक्ट। आस्क दिस क्वेश्चन, करेक्ट। हाँ, सो उसके पहले, हाँ, तो वो क्वेश्चन का आंसर बहुत फनी है कि व्हेन आई वाज इन ईवाई, तभी मुझे ना प्रमोशन नहीं मिला था, ये किसी को मालूम नहीं। मुझे ना प्रमोशन नहीं मिला था बहुत बेसिक लेवल पे। और वो बेसिक लेवल ऐसा था कि यार सब लोगों को मिलता है प्रमोशन, यार तो मुझे क्यों नहीं मिला प्रमोशन। मतलब ऐसा है कि आई वॉज द ओनली वन आउट ऑफ 14 पीपल हु डिड नॉट गेट प्रमोटेड। और तभी ऐसा दुख होता है ना कि तभी भी चलो एक बार इन लोगों को बताया। और कैसे होता था ईवाई में कि लोगों को ऐसे कैबिन में बुलाते थे और कैबिन में बुला के बताते थे कि प्रमोशन हो गया करके ऐसा। तो मुझे भी कैबिन में बुलाया, पर मुझे बुला के बोलते हैं कि भाई तेरा नहीं होने वाला है प्रमोशन, क्योंकि मार्केट कंडीशंस बराबर नहीं है और ये सब जो जो नॉर्मल रीजंस रहते हैं वो। देन आई वाज लाइक कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, बिकॉज मैंने तो बहुत काम किया है यार। तो देन ये भी ठीक था। उसके बाद क्या हुआ ना, जिनको जिनको प्रमोशन मिलता है ना, सब लोगों को से बुलाते हैं, सब ऑफिस को एक साथ बुला के, लाइक दे कॉन्ग्रेचुलेट देम कि अरे तूने बहुत अच्छा काम किया। आई एम टेलिंग यू, ऑन दैट डे I cried. I went in the bathroom and I cried because I was the only one who did not go there. And सब लोग मेरे ग्रुप में से उधर जाके उन्होंने उनको बुलाया था और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी उनका। तो वो बहुत दुख की बात थी मेरे लिए कि मैंने बहुत मेहनत की यार। ये एक चीज हुई, जब भी अपने साथ गलत होता है ना, तभी हम लोगों को लगता है कि सामने वाला गलत है। उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। देन आई स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने, मेरी गलती थी या उनकी थी। तो इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद तो भी मेरा आंसर बदला ही नहीं, मुझे अभी वही लग रहा था कि उनकी ही गलती है। मेरी गलती तभी भी नहीं है। देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इन अदर कंपनीज। मैंने केपीएमजी में इंटरव्यू दिया, पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू दिया। एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ऑन एवरी फ्राइडे आई एम गेटिंग सुपर हैप्पी कि फ्राइडे आ गया। और फ्राइडे छोड़ो, मैं थर्सडे को ही बहुत हैप्पी होता था कि कल फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे के बाद क्या होने वाला है, सैटरडे संडे होने वाला है। सैटरडे संडे मजे करेंगे। सैटरडे आई यूज टू एंजॉय लॉट। बट संडे आने के बाद ना दोपहर तक सब अच्छा चलता है, पर दोपहर के बाद ना वापस मंडे के ख्याल आने लगते हैं कि यार ये क्या यार, वापस कल ऑफिस जाने का यार, ऑफिस। तो ये ना बाद में मुझे रियलाइज होना चालू हुआ कि आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। इफ आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। आई एम वेरी सॉरी इफ एनीबडी इज गेटिंग दिस फीलिंग राइट नाउ। और कभी ऐसे किसी को आता है, पर इट इज ओके। सब लोगों को ये चीज आती है। पर मेरे लिए क्या था ना, एक वो टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरा प्रमोशन भी नहीं हुआ था। आई फील दैट आई एम नॉट एंजॉइंग ऑल्सो। तो एक काम करते कि हम लोग एक ट्राई करते थे, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो एक दिन ऐसे उठा और मैं घर, लाइक आई बाबा, लाइक मॉम डैड के पास गया। उनको बोला कि मुझे टीचिंग करना है। तो उन्होंने बोला क्या भाई हुआ क्या तुझे एग्जैक्ट। बोला टीचिंग किधर से आया बीच में, लाइक मैंने कभी उसका रेफरेंस भी नहीं दिया था कि मुझे टीचिंग करना है क्या। उन्होंने, मैंने बोला कि नहीं मुझे एक बार कुछ ट्राई करना है। और टीचिंग वाज ऑलवेज लाइक ऐसा था कि मुझे करना है, पर कभी फुल टाइम सोचा नहीं था। देन आई टोल्ड देम द इंटर सिनेरियो कि ये सिनेरियो है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला है एंड आई फील दैट मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था। सो आई एम लाइक, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था। लाइक होता है ना कि मुझे जितना
अप्रिसिएशन जो होता है ना, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। लिटरली बता रहा हूँ, मैं 2 महीने के अंदर रेजिग्नेशन देने ही वाला था। लाइक इट वाज नवंबर, ओके, नवंबर के मंथ में मैं रेजिग्नेशन देने वाला था। पर उसके बाद मुझे समझा कि सीए बनने के बाद लॉयल्टी बोनस भी मिलता है ईवाई में। सो आई वाज एन आर्टिकल आल्सो, मैं आर्टिकल से भी ईवाईसी किया था। सो सीए बनने के बाद अगर 50,000 ऐसे लॉयल्टी बोनस मिलता है। सो 1 साल तो मेरा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद वो 50,000 मिल गया था। सो दूसरा 50,000 के लिए वो कंप्लीट होने वाला था फरवरी में। मैंने बोला लेट्स वेट टिल फरवरी, लेट्स टेक अनदर 50,000 एंड देन लेट्स लीव। तो मैं आई वेटेड टिल फरवरी, आई टुक 50,000 ऑन द सेम डे, आई पुट माई पेपर्स। तो मैंने पेपर्स डाल दिए और 1 मार्च को वाज माई लास्ट डे, 1 मार्च 2020 को माई लास्ट डे था मेरा। तभी सबसे डिफिकल्ट चीज चालू हुई, दैट इज न्यू जर्नी ऑफ टीचिंग। आई सेड एक काम करता हूँ, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया और अप्रोच करते करते ऐसे समझा कि भाई टीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। तो इसका स्टोरी में तुम लोगों को बताऊंगा, पर आंसरिंग टू सार्थक्स क्वेश्चन, व्हाई डिड आई लीव माय कॉर्पोरेट जॉब, this is the reason why I left my corporate job and I came into teaching. But yes, after coming into teaching, I don't know whether it was a right move or no, but yes. So corporate job का question का मैंने I guess आंसर तुझे दे दिया कि सर क्या इट वाज द exactly. परफेक्ट मूव, इट वाज द परफेक्ट मूव। आप स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प कर रहे हो ना ये मोमेंट पे, इतने स्टूडेंट्स की जिंदगी बना रहे हो ना, उनके प्रोफेशनल करियर में हेल्प करके, इट इज रियली Thank you, माइंड ब्लोइंग। thank you, thank you. एंड सबसे पहले सर आपका स्टोरी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आपका स्टोरी जानना है हमें सबसे पहले। स्टोरी जानना है मतलब किसका स्टोरी, क्या स्टोरी, मतलब जी सीए का या लाइक? तो आपने बोला ना कि टीचिंग का Becoming मैं a teacher, from मतलब starting teaching to now ओके, becoming Amit Mahajan sir, whom everybody knows, यस the journey and ओके, beyond. okay. So I one small correction in your question कि from start to अमित महाजन where everybody knows, ऐसा नहीं है भाई। मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम एट द ग्रोइंग स्टेज। सो तुम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और स्टूडेंट्स आल्सो सपोर्टिंग अ लॉट। बट यही है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ बिग पर्सन येट, सो बहुत कुछ अचीव करना अभी भी बाकी है। बट मैं छोटा सा, मेरी जो छोटी सी स्टोरी है तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक हम लोग ये स्टेज पे आए थे जिधर मैंने छोड़ दिया, लाइक मैंने ईवाई छोड़ दिया और टीचिंग स्टार्ट किया। डिड नॉट हैव एनी क्लू कि यार क्या होने वाला है, टीचिंग कैसे करते हैं, मतलब हाउ टू अप्रोच, लाइक टू होम टू अप्रोच, लाइक किसको जाके मैं क्या बात करूं। मैं यूट्यूब का तो इतना कभी था नहीं कि तो क्या करना चाहिए। सो आई वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो उधर आई डोंट रिमेम्बर द वेबसाइट, एक ना वेबसाइट थी, कुछ तो ऐसे वेबसाइट, आई डोंट रिमेम्बर द वेबसाइट नेम, पर उधर मैंने लॉग इन किया। और लॉग इन करने के उधर कैसे होता है, इट इज एन एग्रीगेटर। अगर कोई स्टूडेंट होगा, उसको अगर कुछ सीखना हो, प्राइवेट ट्यूशन जैसा अगर कुछ सीखना होगा, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल गो टू दैट वेबसाइट और उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो बता देगा हम लोगों को कि ये कैसे आ गया करके, मैच आ गया करके। पर ये स्टूडेंट का मैच था, ठीक है। तो तो वैसा करके ना मैंने एक स्टूडेंट मुझे मिला था, तो उसको मैंने पढ़ाना चालू किया और उसने मुझे बोला कि अभी कैसा है ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। टैक्स में तो पहले से था मैं, तो टैक्स था ही। उन्होंने पूछा कि अकाउंट्स पढ़ाओगे क्या, तो मैंने बोला नहीं नहीं अकाउंट्स नहीं आएगा। कॉस्टिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज मैं कॉस्टिंग की वजह से इतने बार फेल हुआ, तो कॉस्टिंग भी नहीं बोल दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, तुझे यू वांट एजुकेशन नो, यू वांट सम टीचिंग इन अकाउंट्स नो, कॉस्टिंग नो, डोंट वरी। मैंने लोगों को जमा किया जो अच्छा अच्छा पढ़ा सकते हैं ना, उनको जमा किया और टीम बनाया छोटा सा। मैंने बोला एक काम कर, मैं दिन भर टैक्स पढ़ाऊंगा उसको, बट सुबह का टाइम उसके पास होगा तो तेरे पास भी होगा, और शाम का टाइम भी तुम्हारे पास होगा। तो सुबह ना मैं क्या करने लगा, सुबह वो अकाउंट्स के प्रोफेसर को डालने लगा। उसके बाद मैं पूरा 4-5 घंटा मैं पढ़ाता था, बीच में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देता था, और जो रात का टाइम होता था ना वो कॉस्टिंग के लिए देता था। और सब मेरे दोस्त ही थे, वो अभी भी अब टीचिंग फील्ड में नहीं है वो, दे जस्ट लव टीचिंग। ऐसा ज्ञान देना उनको अच्छा लगता है, तो मैंने बोला कि टीचिंग भी अच्छा लगेगा। तो उनको बोला कि चलो आ जाओ तुम लोग इधर, अभी मेरे हेल्प करो थोड़ा सा। क्योंकि वो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट क्या था, मुझे एक सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चारों के चारों सब्जेक्ट चाहिए। तभी एक इसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, राइट। उसमें और एक था, लाइक कॉस्टिंग था, अकाउंट्स था, लॉ था। हाँ, लॉ पर मैं पढ़ाता था पहले, लॉ एंड टैक्स मैं पढ़ाता था, और अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग वो मैनेज कर देते थे। तो ऐसा सब हुआ, ऐसा सब होने के बाद अरे यार अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डिड नॉट क्लियर तभी। और मेरा पहला स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर, और उसने, ऐसा नहीं था, तुम लोग ऐसे मुझे देखो मत, मैं हम लोग ने पूरा 100% दिया था, ठीक है। मैं हम लोग ने सच में बहुत 100% दिया था। तो उसका हुआ क्या कि ही फेल इल 1 डे बिफोर द एग्जाम एंड ही वेंट। सो उसने मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए सर। मैंने बोला कि देख अभी इफ
योर हेल्थ इज सपोर्टिंग यू, तो डायरेक्टली जा एग्जाम में, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर नहीं सपोर्ट करा तो इट्स ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट जा सकता है। उसे बोला ठीक है चलो जाता हूँ, जो होगा वो देखा जाए। तो बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन ही डिड नॉट क्लियर आफ्टर, उसने सीआई छोड़ दिया यार। तो ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा कि यार क्या करना चाहिए यार ऐसा। तो सीए चलो छोड़ दिया, तो सब लोग मुझे पूछने लगे भाई उसका रिजल्ट क्या है, मैंने बोला कि नहीं पास हुआ है, मतलब नहीं हुआ यार पास अनफॉर्चुनेटली। बट ही इज अ वेरी सक्सेसफुल गाय राइट नाउ, मतलब उसने खुद का बिजनेस चालू किया और ऐसा बात, वो उसके बारे में बताऊंगा मैं। सो ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था कि नहीं क्लियर हुआ। देन मेरे खुद के ना इंटर्न्स थे व्हेन आई वाज इन ईवाई, तभी मेरे इंटर्न्स थे जो फाइनल में आए थे, और मैं तो डायरेक्ट टैक्स में था। उन्होंने पूछा कि डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएगा क्या और लॉ पढ़ाएगा क्या, मतलब ठीक है नो प्रॉब्लम। मैं आईडीटी तो पढ़ाता नहीं था पहले, तो डायरेक्ट टैक्स उसको पढ़ाया और लॉ पढ़ाया। और डायरेक्ट टैक्स किधर से पढ़ाया, बीबी सर की बुक से पढ़ाया। मैंने बोला कि एक काम करना, बीबी सर का बुक अरेंज करना और मेरे पास लेके आना, और उसका जेरोक्स कॉपी लेके आना एक मेरे लिए। तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, उनको बोला, और उसके बाद जेरोक्स कॉपी लेने के लिए मैं उसमें से ही पढ़ाऊंगा ऐसा करके, तो बीबी सर को बाद में बोला मैंने ये चीज। तो वैसे उनको पढ़ाना चालू किया, एंड ही गॉट 63 इन डीटी। लाइक वो डीटी में 63 मिला और लॉ में 74 मिला। मैंने बोला यार कुछ तो कर सकते हैं हम, ऐसा इतना बुरा भी नहीं पढ़ाते। ऑफ कोर्स दैट स्टूडेंट वाज गुड, बट आई विल ऑल्सो टेक क्रेडिट कि मैंने भी अच्छा पढ़ा है। राइट, तो ऐसा थोड़ा सा मैंने भी क्रेडिट ले लिया। तो दैट एक्टेड लाइक अ वेरी एक्टेड लाइक एन एक्सेलरेशन फॉर मी, कि मुझे गियर मिल गया कि हाँ ठीक है मैं पढ़ा सकता हूँ अभी। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग क्लासेस, और तभी हुआ कोविड। 2020 की बात है, तभी कोविड हुआ। और कोविड होने के बाद अरे हाउस लॉक ना यार, तुम लोग किधर जा ही नहीं सकते, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग अभी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गए ना क्लासेस के। क्योंकि क्या होता है मुंबई की क्लासेस में, यू मस्ट बी नोइंग कि देयर आर वेरियस ब्रांचेस। अगर एक प्रोफेसर होगा ना, वो एक प्रोफेसर सब ब्रांचेस में जाके वैसे भी नहीं पढ़ा सकता, सो देयर इज एन ऑलवेज नीड ऑफ प्रोफेसर्स। तो वो भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग क्या करते थे, अगर तुम लोग 2020 का अगर तुम लोग किसी को भी पूछोगे, तो वो लोग एक ही प्रोफेसर के लेक्चर्स रखते थे और वो सब लोगों को देते थे पूरे मुंबई में। और मैं बोला यार अभी किसी कुछ मिलेगा ही नहीं। देन मेरे सोसाइटी में ही एक है जिनका क्लासेस है, तो उनसे मैंने बात किया, तो ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। और वो क्लास का नाम है शेष क्लासेस करके, ठीक है, शेष एडुकेशन, शेष क्लासेस करके, जो मरीन लाइंस एंड दादर में है। तो उधर मैंने पढ़ाना चालू किया। आई गॉट अ वेरी गुड एक्सेलरेशन देयर ऑल्सो, क्योंकि उधर भी स्टूडेंट्स आने लगे। तभी मुझे टीचिंग थोड़ा अच्छा लगने लगा, बिकॉज क्या हुआ कि लोगों को वो चार्ट्स अच्छे लगने लगे। देन आई सेड कि यार लोगों को, मुझे समझा कि इनको ना लैंग्वेज पसंद नहीं है, उनको चार्ट्स पसंद है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट्स बनाते हैं। तो बुक बुक तो रेडी थी नहीं, और वो लोग बुक का डिमांड कर रहे थे। तो मैंने बोला कि काम करो, देखो कैसा है। अभी मैं ये चीज भी नहीं बोल सकता मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनका ही कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि यार ये क्या फर्स्ट टाइम आया पढ़ाने के लिए। उनको मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं रोज तुम लोगों को चैप्टर देते जाता हूँ, और उसका प्रिंट आउट लेके जाओ, लेके आओ। अगर तुम लोगों को लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, यू टेल मी, आई विल रीइंबर्स दैट अमाउंट टू यू। बिकॉज बुक रेडी था नहीं, पर मुझे बेस्ट बुक देना था जो देना था। तो मैं क्या करता था, रात भर बैठ के उसका चार्ट बनाता था, और चार्ट बुक छोटा सा बनाता था, और वो चार्ट बनाने के बाद उनको वो देता था प्रिंट आउट निकालने के लिए। सिर्फ उनको उतने का प्रिंट आउट निकालना है और उतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। और क्वेश्चन बैंक के लिए क्वेश्चंस का जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करना है। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, लाइक ये मेरा स्टार्ट था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं नहीं भाई बुक तो देना चाहिए, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बुक। तो बुक पे काम करना चालू किया, तो पहले आधा बुक बन गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी पढ़ाना चालू किया, तभी आधा बुक मेरा बन गया था। तो मैंने आधा बुक दिया, और जब भी मेरा पढ़ाना चालू हो गया ना, तब तक मैं सेकंड जो पार्ट बाकी है वो मैं उसका नोट्स बनाना चालू किया, और तब तक मैं उनको दो पार्ट्स में वो दे दिया। ये दिस इज द सेकंड स्टेज। एक ऐसा भी हुआ। देन 2022 में मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन ट्राई करेगा, एक बार ऑनलाइन ट्राई करते हैं। देन आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड घर पे वापस बैठ गया, और मैंने सोचा काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चालू करते। फर्स्ट वीडियो मैंने डाला ऑनलाइन, टीडीएस का एक ये था, रिवीजन लेक्चर था, मेमोरी टेक्निक नहीं, टीडीएस का एक रिवीजन लेक्चर था। और वो रिवीजन लेक्चर में, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। और क्यों था रिवीजन लेक्चर वो, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट से झूठ बोला था फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ। मुझे किधर तो बाहर जाना था, ठीक है, और मैंने स्टूडेंट्स को क्या बोला था कि आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके वैसे बोला, और मैंने बोला कि ये जो लेक्चर है ना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और तुम लोगों को दे दूंगा। ऐसा कुछ गलत नहीं किया, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि स्टूडेंट के साथ मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज तभी
ऐसा होता है कि नहीं यार, तू तू ही है मेरा, क्योंकि तू 5 स्टूडेंट्स थे यार मेरे पास, तो उनके साथ क्या बेचारे नन्हे मुन्ने, उनके साथ क्या झूठ बोलूं यार मैं। ऐसा तो मुझे बहुत बुरा लगा, उनको बोला कि मैं लेक्चर डाल दूंगा, और वो लेक्चर डालने के लिए मुझे समझा नहीं किधर डालना है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और अनलिस्टेड दे दिया। तो सब लोग ने बोला कि सर मेरे दोस्तों को भी लेक्चर्स देखने हैं आपका, वो टीडीएस का, वो आपने यूट्यूब का वीडियो है ना, तो आप थोड़ा पब्लिक कर दो ना। तो मैंने पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक करने के लोगों को अच्छा लगने लगा। मैंने बोला कि यार सही है यार, ये तो चलता है यूट्यूब पे। और अचानक ना 100 व्यूज आ गए। 100 व्यूज तो बहुत बड़ी बात थी यार तभी। 100 व्यूज जब भी तुम्हारे पास 5 सब्सक्राइबर है, और वो भी मेरे घर वाले 5। तो ये सब देखने के बाद 100 लोग, 100 जब भी व्यूज मिलते हैं ना, तभी ऐसे लगता है अरे वाह क्या बात है यार, अच्छा चल रहा है। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे चालू हुआ। आफ्टर 10 वीडियोज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एंगेजमेंट ही नहीं आ रहा है। 50, 60, 70 व्यूज इतने ही है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना चाहिए। देन मैंने टीडीएस का एक मेमोरी टेक्निक बनाया और मेमोरी टेक्निक डाल दिया, टीडीएस मेमोरी टेक्निक। देन वो चला और वो वायरल हुआ। और मेरे लिए वायरल क्या, 500 व्यूज। तभी मेरे लिए वायरल मतलब 500 व्यूज था। तो वो 500 मतलब यू जस्ट इमेजिन, आई हैड 700 सब्सक्राइबर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ 700 सब्सक्राइबर्स थे आई रिमेंबर। और एग्जाम का नवंबर 2022 की बात है, नवंबर 22। मैं इसे रिफ्रेश करता था ना, 500 व्यूज बढ़ते थे। रिफ्रेश करता था ना, 500 व्यूज बढ़ते थे। और ये जब भी देखा ना, मैं हिल गया। तभी मैंने बोला कि एक काम करेंगे, ऐसा ही वीडियोस बनाते रहेंगे और आगे की वीडियोस नहीं चले। देन आई अंडरस्टूड कि भाई यूट्यूब में एवरी वीडियो नहीं चलता है। यूट्यूब में कुछ कुछ ही वीडियो चलेंगे, और 50 में से एक वीडियो चलेगा, पर उसके लिए वो 50 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वो एक चीज मुझे तभी सीखने मिली। देन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये मेमोरी टेक्निक चलते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। देन और एक मेमोरी टेक्निक बनाया, और एक मेमोरी टेक्निक। दिस इज हाउ आई कंटिन्यूड सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं तुम लोगों को पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बताया कि कुछ इंप्रूवमेंट जो होता है ना, हम लोगों को मालूम होता है कि कुछ तो करना है, कुछ तो बेटर करना है, पर वो बेटर क्या करना है तभी नहीं समझता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम एनीबडी एल्स, और वैसे खुद में इंप्रूवमेंट हो जाती है। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दैट इंप्रूवमेंट इन मी, इन माई सेल्फ, एंड इन माई चैनल एज वेल, एंड इन माई बुक्स एज वेल। सो ये हुआ 2022 की बात। 23 में भी कंटेंट बनाते गया। देन मैंने बीच में गिव अप कर दिया। मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, एंड आई जस्ट नीड टू गिव अप। एंड अच्छा चल रहा था सब कुछ, मतलब कुछ प्रॉब्लम था नहीं पहले से। एक काम करते हैं, टीचिंग छोड़ देते हैं, बिकॉज मेरे वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे थे कभी। कि अब पैसा ही नहीं आ रहा है यार, किधर से पैसा आएगा, मतलब वो 2-3 लाख में आई वॉज नॉट गेटिंग हैप्पी। लाइक मैं 3 साल मेरे छोड़ के हुआ है, और आई एम नॉट गेटिंग मनी, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने छोड़ रहा था, तभी मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि यार तूने अब तक 100% दिया, कब किधर है, तू 100% दे तो सही, और उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। तो उसने मुझे बोला कि आई एम गिविंग यू 1 ईयर, अगर तूने 1 साल के अंदर कुछ किया, देन इन दैट केस इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग। अगर 1 ईयर कुछ नहीं हुआ, अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, देन इन दैट केस यू कैन लीव एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तो जॉब तो कर सकता है, इशू नहीं है। यू विल सी दैट, लाइक इफ यू गो ऑन माई यूट्यूब, August 23 से लेके August 24, you just see the number of videos which I've put on YouTube. भयंकर भयंकर वीडियोस, मतलब एक एक दिन पे 2-2 वीडियोस डाल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास 1 साल है खुद को प्रूव करने के लिए। तो 1 साल के अंदर 365 डेज है। 365 डेज है, मतलब रोज के रोज कुछ ना कुछ तो कंटेंट डालना है। इन दैट ईयर आई गेव माई एवरीथिंग। मतलब जो मेरे पास था ना, आई डिड नॉट थिंक अबाउट मनी, बिकॉज उसने एक चीज बोली कि पैसे के बारे में टेंशन मत ले, मैं कमर, बिकॉज शी इज ऑल्सो सी है, शी वॉज इन ईवा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कमा रही थी, वो ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उसने बोला कि पैसे का सोच मत, तू कर ले सिर्फ। मैंने बोला चलो ठीक है। तभी मुझे सार्थक ने बोला ना कि यू आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, तभी मुझे समझा कि एक काम करते हैं, द बेस्ट वे टू गेट कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स इज बाय हेल्पिंग देम। बिकॉज मैं कितना भी एडवर्टाइजमेंट अच्छा बैनर बना के डालू, वो नहीं आने वाला है मेरे पास। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू आवर वर्क प्रॉपरली। और मैंने लोगों से कनेक्ट करना चालू किया, जूम मीटिंग्स लेना चालू किया, या फिर रिवीजन लेक्चर्स लेना चालू किया, या फिर लास्ट डे मैराथन का कॉन्सेप्ट मैंने चालू किया। तो ये सब चीजें मैंने चालू कर दी, सो दैट लोगों से मैं कनेक्टेड रह पाऊं और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। सो आई फोकस्ड मोर ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रादर देन जस्ट पुटिंग द लेक्चर्स। बिकॉज लेक्चर्स देने वाले बहुत सारे लोग थे, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग नहीं थे। सो आई फोकस मोर ऑन दैट। सो दैट 1 ईयर, आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट 1 ईयर चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। बट वो 1 साल में पैसा नहीं आया, वो 1 साल में मुझे मेरी कम्युनिटी बन गई, मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए।
और वो लोगों ने जो जब भी वो इम्पैक्ट आता है ना, लोग एक दूसरे को बताते, लाइक वर्ड ऑफ माउथ का जो गेम होता है ना, वो 2023 में चालू हुआ। एंड 23 का जो इम्पैक्ट था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कन्वर्जन में 2024 में दिखने लगा। सो इट टुक 5 years फ्रॉम जीरो, लाइक व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या करना है, किसको जाके अप्रोच करना है, क्या वीडियो डालना है, देन यू रैंडमली पुट अ वीडियो फॉर योर स्टूडेंट्स, बिकॉज जिसको जिनसे तूने झूठ बोला है उनके लिए तूने वीडियो डाला। देन उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है सर, झूठ बोला है, चलो ठीक है, काम करो, पब्लिक कर दो, तो पब्लिक कर दिया। देन थोड़े से समझा कि नहीं हो रहा है, तो आई वाज लीविंग दैट। देन वाइफ कम्स इनटू द पिक्चर, शी सेज की टेंशन मत ले, पैसे का, आई एम देयर। देन आई गिविंग एवरीथिंग फॉर दैट यूट्यूब चैनल। एंड यूट्यूब चैनल के बाद 2024 आया, 24 से लाइक चल ही रहा है वो। देन अगेन 2024 में दिसंबर में बीबी सर ने मुझे फोन किया था और उन्होंने पूछा था कि लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बीबी वर्चुअल्स। सो तभी मतलब कि एक बार बात करते हैं, और तभी हम लोग बात करके लाइक बीबी वर्चुअल्स मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स में लाइक if you feel that, like many people will feel, or maybe if anybody who has started teaching, if anybody is watching this video, it does not happen like, if you have joined BB virtuals, तुम्हारे स्टूडेंट्स लाखों में बढ़ जाएंगे या फिर हजारों में बढ़ जाएंगे। इट डज नॉट हैपन दैट वे। बट बीबी वर्चुअल्स का क्या फायदा होता है ना, बीबी वर्चुअल से एक चीज समझती है, वो Amazon वेरीफाइड रहता है ना, Amazon वेरीफाइड, करेक्ट। सो बीबी सर ट्रस्ट अमित महाजन। नाउ यू वांट टू ट्रस्ट अमित महाजन, वो तुम लोग देख लो, बट ऐसा नहीं होता है। सो मुझे लगा था बीबी वर्चुअल्स मतलब मैं तो अभी नेक्स्ट मंथ में बंगला ही लेने वाला हूँ, किधर, मुंबई में कि ऐसा। पर आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मेहनत उतनी ही करनी है या फिर उससे ज्यादा करनी है, बिकॉज ही हैज शोन ट्रस्ट इन यू, राइट। तो ऐसा, तो वी गॉट सच अ ग्रेट टीम, और ऐसे सब तो हम लोगों को उनके साथ स्टैंड होना है, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। तो वो वैसी मेहनत मेरी चालू हो गई। सो इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। मतलब बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे डिफिकल्टीज बीच में आती है जो सिखा के बहुत जाती है। बट एक चीज है कि भाई चिपक के रहना एक जगह, एक जगह पे। एक नहीं हो रहा ना, करते रहे, नहीं हो रहा ना, करते रहे, ऐसा। बट यस, Beautiful story, sir. It truly seems like a roller coaster, like full of ups and downs, but surely enjoyable and memorable. So, like, this journey also sounds very good, like from teaching from BB sir's books to now working with BB sir. Truly a great achievement. And to be honest, more than just students, what you have earned is our love, respect, and blessings because हम आपके वजह से tax pass हुए, sir. So now talking about the subject for which you are loved the most, GST. Well, when we now talk about or think of GST, so there are just two school of thoughts. One says कि यार बहुत boring है या monotonous है, and one of them says कि यार but ये बहुत revolutionary है. So in this entire spectrum, where do you stand as an individual? कि how do you look at GST? भाई देख, जीएसटी जो है वो डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी है, बिकॉज जो भसड़ मची थी ना पहले, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, वैट चल रहा है, सर्विस टैक्स चल रहा है, इतनी सारी चीजें जो पहले होती थी, वो सब कुछ हटा के एक जीएसटी पे आना, इट वाज अ वेरी बिग मूव फॉर द गवर्नमेंट। बट यस, रेवोल्यूशनरी जैसा है। अगर हम लोग ने थियोरी का बात किया, जीएसटी इज टू गुड, जीएसटी बिकम्स डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको पूछो कि जीएसटी उनको अच्छा लगता है क्या, नहीं। बिकॉज अभी जो पहले अलग अलग एक्ट में बसड़ मची थी ना, अभी ये एक ही एक्ट में बसड़ मची है। ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे रिटर्न्स, इतने सारे सर्कुलर्स, वो सर्कुलर्स कभी आया है कभी नहीं। अभी क्या है कि एंड दिस इज गोइंग टू हैपन, व्हाई? बिकॉज द लॉ इज गेटिंग डेवलप्ड। नो, इनकम टैक्स के साथ ऐसा नहीं होता है, इतने सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स नहीं आते, बिकॉज इट इज अ सेटल्ड लॉ। लाइक 1961 का बात करा, अभी तो 25 भी है, बट 1961 का बात किया तो इफ यू कंपेयर, इतना चेंजेस नहीं आते थे जितने जीएसटी में आते हैं। चेंजेस मतलब सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। क्यों ऐसा? बिकॉज दैट इज अ सेटल्ड लॉ, जीएसटी इज स्टिल गेटिंग सेटल्ड। तो इसके वजह से जब तक वो सेटल नहीं होता है ना, जब तक वो लूपहोल्स अभी भी गवर्नमेंट को दिख रहे हैं कि ये लूपहोल्स है, लूपहोल्स क्लोज करने के लिए दे विल इशू सर्कुलर्स, दे विल इशू नोटिफिकेशन, बिकॉज देयर आर मेनी ग्रे एरियाज अभी भी है जिसका इंटरप्रिटेशन नोबडी नोज, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस भी बहुत हो रहा है एंड हम लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है, एंड वाइसा वर्सा, दोनों भी हो रहा है
कि रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है बिकॉज इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, इस तरह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, पर एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए इंटरप्रिटेशन, तो उसके लिए लड़ाई भी चल रही है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये जब तक सेटल नहीं होता ना तब तक दिस इज गोइंग टू बी देयर, राइट? तो लेट्स गिव सम टाइम टू जीएसटी टू गेट सेटल्ड। बट यस, जैसे मैंने बताया, जीएसटी इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट इन थियोरी, बट इन प्रैक्टिकल इट इज लाइक, मतलब वो वाट लग जाती है यार वो करते करते यार, नाइन 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 से करते करते मतलब इतना वो बोरिंग हो जाता है ना सेम चीज। और आर्टिकल के लिए तो आई कैन इमेजिन कि कैसे होता होगा। लाइक why I'm saying is like in EY also, my wife used to work in EY GST only, तो in that case मुझे समझता था कि वो इंटर्न का ही काम कर रही है, मतलब कुछ वो तो मैनेजर बन गई थी। बट शी वाज लाइक कि देयर इज नो बाइफर्केशन ऑफ वर्क इन जीएसटी, बिकॉज जीएसटी में सब लोगों को सब कुछ ही करना पड़ता है एट ऑल लेवल्स, लाइक टिल सीनियर मैनेजर एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग। बट यार तो भी मैं बताऊं, अगर हम लोग ने टेक्नोलॉजी का बात किया, जीएसटी के अंदर का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा। नाउ अगर मैंने इनकम टैक्स से कंपेयर किया, इनकम टैक्स से रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है या फिर क्रेडिट्स दिखने का जो पॉइंट है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। सो दैट्स वाई वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी अच्छा यूज किया। लाइक देखो ना, क्रेडिट मिलना, आईटीसी मिलना तुम्हारे टूबी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिधर ऐसा हो रहा है कि यार वन फाइल किया है पर टूबी में नहीं दिख रहा है। ये बहुत कम केसेस हो सकते हैं, पर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। तो बिकॉज मेन पॉइंट तो इधर ही होगा। पर 26 ईयर्स का बहुत होता है अभी भी, 26 ईयर्स का तुम लोगों ने, तूने रिटर्न फाइल किया है पर इसके 26 ईयर्स में दिख ही नहीं रहा। या फिर ऐसा भी होता है कि 26 एएस में दिख रहा है पर मेरे रिटर्न में वो कैप्चर नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे वो लकुना जो है वो इनकम टैक्स में मुझे ज्यादा दिखता है देन जीएसटी। तो थोड़ा अप्रिसिएशन भी करना चाहिए गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जीएसटी, डेफिनेटली। बट यार गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड कैसा है कि लॉ बढ़ता क्यों है? बिकॉज लोग चोरी करते हैं। जितने चोर अपने इसमें है, लाइक इफ यू लर्न, लाइक आई वाज डूइंग एसीसी आल्सो, तो मुझे मालूम है यूके टैक्स भी कैसा है, राइट? सो यूके टैक्स और मैं इंडिया का टैक्स जब भी कंपेयर करता हूँ ना भाई, यूके टैक्स में इतनी कम चीजें है ना एज कंपेयर टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये क्यों है? इधर के लोग ज्यादा चोरी के पीछे नहीं जाते जितना एज कंपेयर टू इंडियंस, कि हम लोग इसमें ये निकाल लेंगे, इसमें वो निकाल लेंगे, अरे हाँ ये ऐसे कर, वो तो सर्कुलर्स तो बढ़ेंगे ना भाई, क्लैरिफिकेशन तो बढ़ेंगे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। बट यस, तो जीएसटी थियरी में अच्छा है बट प्रैक्टिकल में तो बस रेडी है अभी भी। बट लेट्स सी, लेट्स होप दैट जो अभी रिकमेंडेशन जो आए हैं लाइक जीएसटी 2.0 के अंदर रेट्स तो चेंज किए डेफिनेटली, बट ये तो रेट्स तो फाइनल कंज्यूमर का बात किया। बट अगर हम लोगों का बात किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, लेट्स होप दैट आगे जाके भी थोड़ा चीजें स्ट्रीमलाइन हो, और एंड ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो सपोर्ट्स अस, सो लेट्स होप फॉर दैट एंड इट विल बी द बेस्ट यार, मतलब गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। In your tax practice batch, what were the key challenges you faced when you suddenly had to adapt to unexpected situations? For example, आपका प्रैक्टिस बैच यूजुअली 10-12 दिन का होता है, बट कभी कभी एक ओवरलोड आ जाता है बच्चों का, तो आप हर एक बच्चे को वैल्यू कैसे केटर करते हैं? बस सार्थक एक चीज तूने जो बोला कि प्रैक्टिस बैच 10-12 दिन का होता है, वो 10-12 दिन का नहीं। सो अगर मैंने बात किया डीटी का, सो डीटी का प्रैक्टिस बैच जो होता है दैट इज फॉर 20 to 25 days, एंड जो जीएसटी का होता है वो 15 days का होता है। लाइक बिफोर आई आंसर दिस एंड यस, सो अभी मैं आंसर करता हूँ ये पॉइंट पे कि क्या यू आस्क की चैलेंजेस क्या है, राइट? तो हाउ डू यू केटर दैट? ओके, इसलिए बहुत सही क्वेश्चन है। अभी देखो कि मैं आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी, छोटा रखूंगा, ट्रस्ट मी। ये स्टोरी ऐसी है कि जब भी देखो ना, मैंने जब भी बताया पहले का स्टोरी, अच्छा पहले वो स्टोरी बताया, सो यूल बी एबल टू कनेक्ट टू दिस नाउ। 2023 में आई हैड गिवन एवरीथिंग, 23 से 24 में ये वो जो फेज था, तभी स्टूडेंट से कनेक्टेड था मैं, राइट? तो इसके वजह से ना नवंबर 23 में बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, मतलब सब कुछ डाला था, सुपर 75 डीटी का, आईटीटी का, इंटर के लिए बात कर, सब कुछ किया था। वो करते करते मैराथन भी लिया था, लाइक फर्स्ट मेरा ओवरनाइट मैराथन तभी हुआ था 23 में, फर्स्ट वाला। देन हुआ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तभी कुछ तो 1000 कुछ लोग क्रॉस हुए थे तभी, आई रिमेम्बर। देन एवरी प्रैक्टिस बैच ना, प्रैक्टिस बैच का कॉन्सेप्ट मैंने निकाला 22 में, एवरी बैच में 100, लाइक फर्स्ट तो मेरे 18 लोग थे, उसके बाद 50 हो गए, बाद में 100 हो गए, और नेक्स्ट सेटर में भी 100। तो ऐसे सब ना
वही रेंज में चल रहा है बेसिकली, 100, 150, 100, 150। 2023 का मेरा नवंबर अटेम्प्ट हो गया अपना तुम लोगों का। देन नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज मे, बिकॉज तभी तो 3 अटेम्प्ट नहीं थे, वो 2 ही अटेम्प्ट थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज मे। तो जैन में रिजल्ट आया। जैन में रिजल्ट आने के बाद मैंने क्या किया कि अपने बुक्स जो थे वो 100 बुक्स का रेडी रखा था मैंने स्टॉक। मैंने लोग मतलब एक ही जन था जो प्रिंटर था, मेरे पास कोई दूसरा जन नहीं था जो कॉलिंग करेगा या फिर कॉल एक्सेप्ट करेगा या फिर टेक्निकल पर्सन चाहिए, मिल जाएगा। तुम लोगों को डाउट सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। तुम लोगों को बुक्स किधर जानना है, मिल जाएगा। तुम लोगों को जानना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मिल जाएगा। तो किधर मिलेगा? सब इधर मिलेगा, बाकी किधर नहीं मिलेगा। तो ऐसा चीज है। तो लोग मुझे फोन भी करते थे ना, तभी मुझे पूछते थे सर आप बात कर रहे हो, तो उनको दे आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे कुछ टीम होगी। तो आई यूज टू टेल देम हाँ वो टीम जरा छुट्टी पे है अभी, तो इसके वजह से जरा, तो ऐसे सब बोल 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 के आई यूज टू टेल देम कि नहीं नहीं ये टीम छुट्टी पे है, तो इसकी वजह से मेरे पास टीम नहीं है। 100 स्टूडेंट्स मेरा एक्सपेक्टेशन था। एंड इन दैट अटेम्प्ट, इन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिजल्ट्स, आई गॉट 200 या 300 ऑर्डर्स ऑन द फर्स्ट डे। और ये जब भी हुआ ना, तभी डर लगा। अच्छा तो लग ही रहा था, बट डर लगा ये बात का, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स तो देखे ही नहीं। और एक दिन में मेरे पास 200-300 स्टूडेंट्स का ऑर्डर आया था, और मेरे पास बुक्स का तो प्रिंटिंग हुआ ही नहीं था। तभी ऐसा कुछ तो हुआ था कि प्रिंटर 2-3 दिन बाहर गया था, तो प्रिंटिंग पूरा बंद होने वाला था। मैंने उसको फोन किया, वो बोला कि नहीं है चालू। लोग मुझे फोन कर रहे हैं सर बुक्स कभी मिलेंगे? अभी तो ऑफ कोर्स ऑन द सेम डे दे विल आस्क कि बुक्स कभी मिलेंगे। तो मैं ही फोन पे बताता था कि अप्रोक्सीमेटली तुम लोगों को 7-8 दिन में मिल जाएगा बुक्स। और बाद में मुझे समझा कि वो प्रिंटर गया है 2-3 दिन। देन वो प्रिंटर को मैंने बोला कि प्लीज कुछ तो करना और प्रिंटिंग करना, बिकॉज और तभी भी समझ नहीं रहे थे कितने लोग आएंगे। अभी फर्स्ट डे पे 200-300 लोग आए। देन आई सेड कि एक काम करो 500, और 500 करो अभी, बिकॉज 500 100 से 5 टाइम्स इज अ गुड अमाउंट, राइट? कि इससे ज्यादा कितना आएंगे यार अपने पास, ऐसा। तो 500 प्रिंट करवाए, और लेट ऑलरेडी हो चुका था। और अच्छा तो बहुत साइड में, बिकॉज एवरीबडी इज कॉलिंग मी यार। तू समझना कि व्हेन 200-300 में से तुम लोगों को 50 कॉल्स भी आए ना, तो तुम लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और कॉलिंग का जो जॉब होता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द इंटायर टीचिंग का। वो जो सर्कल रहता है उसमें, लाइक जो जो हायरार्कीज रहते हैं उसमें, बिकॉज उनको स्टूडेंट से डील करना होता है, राइट? और स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट किधर है? कल ऑर्डर किया था, आया क्यों नहीं अब तक? अरे ऐसा, लाइक वो ऐसे उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि कल ऑर्डर किया, आज आया क्यों नहीं घर पे, ऐसा ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तो वो सबको डील करना, और ऐसा तो 500 ऑर्डर किया, एक दिन वापस 100 आया, वापस बाद में 100 आया, तो 500 इधर कंप्लीट हो गया 4 दिन में ही मेरा। अभी वापस मुझे प्रिंट के लिए देना पड़ेगा। अभी कितना दूं प्रिंट के लिए? तो मैंने बोला एक काम करते और 500 दे देते हैं। बट ये सब में ना क्या हुआ ना, इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, इतना मिसमैनेजमेंट, आई कांट टेल यू कि अगर मैं स्टूडेंट रहता वो बैच में, आई विल फील वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस, कि यार इतना ऐसा कैसे कोई सर्विस देता है। लाइक दिस विल बी माई फर्स्ट इंप्रेशन। और ऐसा मुझे फील हुआ कि स्टूडेंट को तो लग ही सकता है। बट द बेस्ट पार्ट वाज, मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं, स्टूडेंट्स आर सो कंसिडरेट। लिटरली दे वर टेलिंग मी, मैं उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, frankly speaking I was not ready for it, and since I got these many orders I am working on it, please wait for some time. Luckily उधर टाइम बहुत था, बिकॉज जैन में रिजल्ट आया तो मई में एग्जाम था। पर अभी यही चीज अभी हुई ना, तो अभी 2 महीने में एग्जाम रहता है रिजल्ट के बाद, पर उधर 5 महीना था। सो दैट हेल्प, एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी कंसिडरेट इन दैट पार्ट। स्टूडेंट्स सेड कि सर इट इज ओके, यू टेक योर टाइम, वी अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या किया, मेरा सॉफ्ट कॉपी दे दिया उनको। मैंने बोला कि तुम लोगों को प्रिंट आउट लेना तो ले लो, आई विल रीइंबर्स दैट अमाउंट। I had never seen these many students in my online batch. I had never seen that bank balance in my bank account. But ये सब कुछ साइड में था, बट वही था ना, बैंक बैलेंस का फायदा क्या इफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। देन आई स्टार्टेड टेलिंग देम कि ऐसे ऐसे हुआ। ये तो पहला प्रॉब्लम मेरा ये हुआ था, बुक्स चलो डिलीवर हो गए। डिलीवर होने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने ऐप भी यूज करना स्टार्ट किया था, बिकॉज उसके पहले मैं जूम पे पढ़ाता था। अभी ऐप स्टार्ट किया तो ऐप में प्रॉब्लम्स होने चालू हो गए। और ऐप में होता क्या था कि प्रॉब्लम क्या, मैं लेक्चर चालू करता था, उनके इधर लाइव दिखता ही नहीं था। तो वो लोग फोन करते थे। फोन किसको करते थे? मुझे करते थे। पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं फोन उठा नहीं पाता था। तो वो उधर फ्रस्ट्रेट हो रहा है उधर बैठ के कि यार कोई उठाता ही नहीं है अमित महाजन के क्लासेस में से फोन। तो उधर स्टूडेंट अलग लेवल का डिसअपॉइंट हो रहा है, वो मुझे समझ ही नहीं रहा। और मेरा तभी आई रिमेम्बर आई हैड नॉट स्लेप्ट फॉर 2 एंटायर डेज। मैं डेज मतलब नाइट,
2 दिन में सोया ही नहीं, मैं सो ही नहीं पाया, बिकॉज आई वॉज फीलिंग बैड फॉर द स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. एक दिन में किधर लोगों को लेके आऊं, किधर ट्रेनिंग दूं, क्या करूं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. दिस वॉज द मेजर चैलेंज विच आई फेस्ड इन 2024, लाइक लास्ट ईयर जैन फेब का जब टाइम था. और तभी ऐप में प्रॉब्लम चालू हुआ, तो ऐप का भी ऐसा हुआ कि एवरीबडी इज कंप्लेनिंग की. और वो लोग कैसे करते थे ना, स्टार्ट में मेरा ऐप इतना खास नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, कंपेयर करते थे विद द बेस्ट प्रोफेसर हु आर इन टैक्स. तो वो लोगों का कितना अच्छा है, बिकॉज रेगुलर बैच तो उनसे ही लिया उन्होंने. तो वो लोगों का देखो ना, ये तो कितना अच्छा ऐप है, ये आपका ऐप जरा. तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ऐप में भी हम लोगों को भी अच्छा करना पड़ेगा. देन आई रीच्ड आउट टू मेनी ऐप क्रिएटर, लाइक ऐप डेवलपर्स. उनको मैंने बोला कि भाई मुझे नया ऐप चाहिए. मैंने 8 लाख रुपए खर्चा किया था, रिमेंबर, 8 लाख रुपए खर्चा करके 2 दिन के अंदर उसने ऐप बनाया और मुझे दे दिया. और वो ऐप नया मैं उनको दे दिया. लाइक लिटरली ये 8-10 लाख मेरा जो खर्चा हुआ है वो एक बैच में, टू जस्ट टू मेक इट लुक परफेक्ट. और इसका कॉम्पेंसेशन तो बनता था. अगर ये जो 2 10 15 दिन जो हो रहा था प्रॉब्लम, इसका कॉम्पेंसेशन बनता था. एंड फॉर दैट बैच, मतलब मैंने मेरी जान दे दी है, जान दे दी. मतलब इतने स्टूडेंट्स तो देखे नहीं थे कभी. तो अल्टीमेटली कुछ 1000 स्टूडेंट्स मेरे तभी हो गए थे वो बैच में. लाइक आई वाज ऑन द क्लाउड कि ये क्या हो रहा है. तभी टेंशन भी आया था कि यार इतने स्टूडेंट्स को मैनेज कैसे करना है. बिकॉज अभी तक क्या होता था, आई न्यू एवरी स्टूडेंट टू हुम आई एम टीचिंग, उन नाम के साथ, बिकॉज वो तो जूम पे पढ़ाता था मैं. अभी ऐप पे ऐसे होने लगा कि उनका नाम ही नहीं मालूम. तो कनेक्ट कैसे करूं मैं उनके साथ कि तेरा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है. जो पहले भी तुम लोगों को पता है कि मैं कनेक्ट होता था स्टूडेंट के साथ. तभी मुझे समझा कि जूम सेशंस लेते हैं लोगों के साथ. तो जूम सेशन मैंने लेना चालू किया तभी. देन आई लाइक Super 75 DT, Super 75 IDT, Super 75 questions of DT, Super 75 questions of IDT, मैराथन ऑफ DT, मैराथन ऑफ IDT, सब कुछ किया वो अटेम्प्ट के लिए. एंड दैट अटेम्प्ट वाज द बेस्ट अटेम्प्ट. एंड वो अटेम्प्ट के अंदर लकीली 4 दिन छुट्टी मिला था टैक्स के लिए. वो 4 दिन छुट्टी, लाइक 24 का अटेम्प्ट, 4 दिन छुट्टी, पेपर मस्त आया और चेकिंग भी बहुत ईजी हो गया. लाइक वो मैं बताता हूँ अभी तक का गोल्डन अटेम्प्ट था 24 मई 24 का, जो इंटर का टैक्स का बात किया. तो बहुत मजा आया था तभी. और दैट वाज, दीज आर द चैलेंजेस आई फील लाइक, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे नींद उड़ाने वाले चैलेंजेस थे. बट आंसरिंग टू सार्थक्स क्वेश्चन, यस, सो प्रैक्टिस बैच में बहुत ही ज्यादा ये अटेम्प्ट में मैंने फेस किया है कि सब जब भी वो पैराडिम शिफ्ट हो रहा था, मेरे पूरे करियर का जो शिफ्ट हो रहा था, उसमें सब में प्रॉब्लम्स हुए थे. बुक्स में प्रॉब्लम हुए, हैंडलिंग द स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम हुए, हैंडलिंग द क्वेरीज में प्रॉब्लम हुए, ऐप में प्रॉब्लम हुए. तो क्वेरीज कभी नहीं समझता था कि क्वेरीज कैसे लेने हैं, बिकॉज तभी तो जूम सेशन पे हो जाता था, पर इधर कैसे करना है. तो आई लर्न अ लॉट over a period of time in that batch. तो yes, मजा आया, पर it was all worth it. और लकीली मैं इसके लिए, लकीली वो पेपर भी अच्छा आया था और सब लोगों के मार्क्स भी अच्छे आए थे. इसके लिए मैं लिटरली बच गया वो अटेम्प्ट में. अगर वो पेपर अगर डिफिकल्ट आता ना, स्टूडेंट्स के लिए वो बन जाता कि यार वो जो था ना, बराबर ऐप नहीं था, वो सब कुछ दिखता स्टूडेंट को. बराबर टाइम पे हम लोगों को बुक नहीं मिली थी, हम लोगों को ये नहीं होता, वो ये सब कुछ दिखता. पर लकीली लाइक इन दैट अटेम्प्ट आई हैड गॉट 500 प्लस एग्जाम्पशंस इन टैक्स. एंड तभी वो फर्स्ट टाइम में सब लोगों को बताने लगा कि देखो नया प्रोफेसर है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं. और ऐसे ऐसे सब जब भी स्टार्ट किया था 24 में, तभी ऐसा तो बढ़िया मजा आया था. गुड एक्सपीरियंस. रियली ग्रेट स्टोरी सर. लाइक द वे यू सेड कि टेलीकॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, ऐप में हो रहा था, बट एक चीज जो थी वो एकदम ऑन पॉइंट थी, दैट वाज योर टीचिंग विच श्योरली हेल्प्ड ऑल सीए स्टूडेंट्स. सो जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन सर, आपने हमें टैक्स में पास कराया, इंटर में फाइनल में कब करा रहे हो सर? फाइनल कब स्टार्ट कर रहे हो टैक्स का हमारे लिए? So फाइनल के लिए भी आई हैड स्टार्टेड विथ माय आईडी. सो आई हैड स्टार्टेड ओनली विद आईडीटी, नॉट विद डीटी. तो आईडीटी के लिए 1 year बैक आई हैड स्टार्टेड विद टीचिंग आईडीटी. और उसके बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं रिवीजन लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं मैराथन्स नहीं ले पा रहा हूँ. तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस जो होता है ना इंटर में जो कर रहा हूँ मैं, इतनी सारी चीजें वो फाइनल में कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. बिकॉज इंटर में बहुत टाइम जा रहा है मेरा, रेगुलर बैच जीटी का, रेगुलर बैच आईडीटी का, प्रैक्टिस बैच जीटी का, प्रैक्टिस बैच वैसा. देन आई थॉट कि काम करते हैं, अभी बीबी वर्चुअल्स के साथ एसोसिएट होने के बाद रेगुलर बैच ऑफ डीटी इज नॉट देयर बिकॉज बीबी सर इज टेकिंग दैट. सो वो मेरा जो टाइम बचेगा ना, लाइक बहुत बड़ा टाइम रहता है वो, लाइक साल के
6 महीने मुझे मिल जाता है, वैसा बोल सकते, 2 बैच अगर कंसिडर किया तो दैट टाइम आई थॉट दैट आई विल इन्वेस्ट इन फाइनल, बिकॉज फाइनल में मुझे बहुत टाइम से आना था, एंड बिकॉज फाइनल का मटेरियल एंड एवरीथिंग इज रेडी एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर, जस्ट दैट मुझे वो टाइम डाल के एक्स्ट्रा चीजें करनी है, जब तक वो नहीं करूंगा तब तक स्टूडेंट वो अप्रिशिएट भी नहीं करेगा और उनको फायदा भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से आई एम स्टार्टिंग विद माई आईडीटी, सो ऑन द 1st October also only I'm starting with my first batch. I'm resuming, I can say, not starting. So resuming with my final journey, I'm working only on that. Like in this month, I'm working only on the final books and final content and yes. तो yes, final के लिए तुम लोग अगर कितने लोग हैं, जितने लोग हैं, तो आई वांट टू से एवरीबॉडीज नेम, मजाक कर रहा हूँ। इन माय फाइनल, वो नहीं यार, ऐसा है कि आई एम रेडी फॉर फाइनल नाउ, बिकॉज मैं अभी आई एम कॉन्फिडेंट इन माय कंटेंट आल्सो, आई एम कॉन्फिडेंट इन लाइक पीपल आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इन माय टीचिंग, सो अभी वो बॉन्ड बन चुका है, अभी इट्स लाइक अभी मिलके फोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, अभी तुम्हारे फाइनल तक आ जाऊंगा मैं ऐसे एकदम। On that line, I have a question for you. We have created the CA students community and also a first product anthology named Education. What are your views on this? और यार जस्ट वही है ना कि तूने जो पहले बताया मुझे कि व्हाट यू गाइस डू, और चालू करने के पहले भी हम लोग जो बात कर रहे थे, आई रियली लव्ड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज कैसा है कि मैं बचपन मैंने ये सब नहीं किया, ये जो सर्कल में या फिर कौन से ग्रुप में जाके, और ऐसे मैंने, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड और आई डोंट नो कि क्या था, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, और अभी जो मुझे रियलाइज होता है कि ये करना चाहिए था, वन थिंग। दूसरी चीज, तुम लोग जो कर रहे हो ना, इसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो रहा है, और ये जब भी स्टूडेंट्स आके बताएंगे ना तुम लोगों को, यू विल फील लाइक अरे यार हम लोग जो कर रहे हैं ना एकदम बेस्ट कर रहे हैं, लाइक वी आर द बेस्ट, ये चीज तुम लोगों को फील होगी। अभी भी लोग आए होंगे, अभी नहीं आए होंगे, इट इज ओके, पीपल विल कम टू यू एंड टेल यू that you are doing a fantastic job, and I am also telling you you're doing a fantastic job. If you are confident, no, that तुम लोग दूसरे के लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ रहे हो, you are winning the game, because मेन तो इंटेंशन का गेम है। अगर इंटेंशन अच्छा होगा ना, आज नहीं तो कल उसका इम्पैक्ट आएगा, पर अगर इंटेंशन ही नहीं, इंटेंशन ही कुछ चीट करने का इंटेंशन है या फिर कुछ ऐसा कुछ करने का इंटेंशन है, तो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। इसकी वजह से इफ यू हैव अ गुड इंटेंशन, इट विल डेफिनेटली वर्क। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि तुम लोग जो अच्छा चीज कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को क्या है ना, अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेम में पूरा, दे आर आउट ऑफ इट कि फेस टू फेस में दोस्त कैसे बनते हैं, उनके पास दोस्त नहीं है। लाइक फेस टू फेस से अभी स्टूडेंट्स को मैं दिखता हूँ ना, मुझे समझता है कि दे डोंट हैव फ्रेंड्स, उनको रिलेशनशिप का भी एडवाइस अमित महाजन से ही चाहिए कि भैया ये सिचुएशन में हूं, मैं क्या करूं। आई गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल कि ये उसको अभी क्या रिप्लाई करूं तो नहीं आता है, पर आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, तो मैं क्या करूं। तो ये डिस्कस करने, आई फील वेरी बैड फॉर देम, ये डिस्कस करने के लिए भी उनको मेरे पास आना पड़ रहा है, कि उनको पास ऐसा नहीं है कि फोन करके बताए कि यार भाई क्या करूं यार, उसका मैसेज आया ऐसा ऐसा। तो अभी तो आई नो मेनी पीपल नाउ फ्रॉम हियर हुम टू कांटेक्ट, तो तुम लोगों का नंबर मैं दे सकता हूँ। तो सबसे बेस्ट तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन ऐसे में हेल्प करेगा, बिकॉज स्टूडेंट के ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बट लाइक जोक्स अपार्ट, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही हेल्पफुल चीज है सब स्टूडेंट्स के लिए, एंड बने रहना बस। अभी ऐसा भी होगा कि थोड़े लोग डंडी मार रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, थोड़े लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तीन तीन दिन सार्थक नहीं आया था, तुम लोगों ने कुछ बोला, दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इज ओके। लाइक कीप सपोर्टिंग ईच अदर एंड डोंट हैव एनी काइंड ऑफ jealousy about anyone. Like this is one advice, like Dharya, you asked me about one advice, right, कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज जो है याद रखना, बिकॉज अभी तो सब स्टूडेंट्स है, आगे भी जाने के बाद ऐसे हो सकता है कि यू फील दैट ये और आगे जा रहा है, या फिर उसको रिकॉग्निशन मिल, फॉर एग्जाम्पल धैर्य स्टार्ट करता है, लाइक यू स्टार्टेड द सेशन, राइट, कभी कभी लोगों को ये भी लग सकता है मुझे स्टार्ट करना है, कभी मुझे क्यों नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है स्टार्ट करने का। ये भी अगर किसी को लगता होगा ना, यू कम्युनिकेट दिस कि आई वांट टू स्टार्ट, इज इट ओके, बट डोंट क्रिएट एनी हेट अमंग्स टीचर, बिकॉज ये कम्युनिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है। यस, kudos. परफेक्ट सर, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, प्लीज डोंट कम टू अस फॉर रिलेशनशिप एडवाइस, वरना हमारी एडवाइस से फिर ब्रेकअप ही होगा। तो हाँ बस कंटिन्यू, ओवर खुद टू। के नहीं नहीं, मेरे कुछ ने नहीं बस खुद का सार्थक, ओवर टू पर्सनल सार्थक, ओवर टू सार्थक। सर एंड करने से पहले वी हैव प्लान टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हमें आपके जैसे कूल टीचर के साथ एक नया सेगमेंट चालू करना था, दैट इज रैपिड फायर। सो बस जितना मन में आता है, पहला इंस्टिंक्ट है बोल लेना बस, जीएसटी इन वन वर्ड। Amazing.
बोलना पड़ेगा ना. Your second most favorite subject to teach, if not taxation. FM, like AFM, because I had got the What maximum marks in final. what is more difficult, वाइफ को मनाना या एग्जाम के पहले 1 डे मैराथन लेना? भाई ये तो सबको मालूम है, वाइफ को. अरे मैराथन लेना तो इजी है, वो 8 घंटा है तो भी क्या हुआ, ये 5 घंटे का कॉन्वर्सेशन इज मोर डिफिकल्ट देन दैट 8 hours मैराथन. because in marathon people are listening to you. 5 minute conversation में the other person is not. अच्छी है मेरी वाइफ, बहुत अच्छी है. ऐसे ऐसे कुछ सर नहीं आप भूल रहे हो, ये रिकॉर्ड होके जाने वाला है. खाली इतना ही अपलोड करेंगे हम पहले. भाई ये शॉर्ट में डाल के भेजेंगे अपन मैम को. व्यूज ही व्यूज. सुन रहे हो सब स्टूडेंट्स? व्हाट इज मोर बेटर, फ्रेंड सर्कल और द विनर सर्कल? बेटर विनर सर्कल यार, क्या तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो यार. ऑफकोर्स विनर सर्कल ना. फ्रेंड सर्कल क्या, फ्रेंड सर्कल यार, तुम लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो हु आर गोइंग टू बी विनर्स. क्या बात है, क्या डायलॉग मारा है मैंने यार. क्या क्या बात है. ये भी डालना जरा. हाँ. ये शॉर्ट कट गया हमारा. So thank you so much, sir. I would now pass on the stage to Kusha. यस. Champs, what an inspiring session this has been. As we wrap up this episode, it's my absolute privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the entire TWC team. Firstly, a heartfelt gratitude to say Amit Mahajan sir. Sir, जैसे आप अपने practice batches के बारे में बोलते हो, that they're not a cost, they're an investment. This entire Yes. conversation with you was a great investment of our time. And the Thank way you answered every question so honestly, so candidly, and the lessons that you talked about, we are truly grateful for your time and your efforts. And also, I'm happy to announce that once our anthology is published, TWC will be honoring you with a special token of gratitude for being a proud and inspiring TWC ambassador. Secondly, a huge thank you to the entire TWC team for making this possible and to our audience for being with us till the very end. If tonight gave you even one new insight, even one spark of motivation, then tell us in the comments. And remember, you're not alone in this journey, you're part of the winner's circle now. So see you soon in the next episode, and until then, keep learning, keep growing, and most importantly, keep winning.